अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत वर्किंग क्लास की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद। मे डे तकरीब से रियासती वज़ीर लेबर का खिताब। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत। वज़ीर आला KCR राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे से रोक रहे हैं, कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी मे डे तकरीब का इनेकाद। INTUC कायदीन और कारकुनों की शिरकत। नाज़रीन गिरामी, इस खबर के साथ आइए दीगर अहम खबरों पर भी नज़र डालेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मे डे की मुनासिबत से सरकारी तौर पर एक तकरीब का इनेकाद तेलंगाना भवन में किया गया, जिसमें रियासती वज़रा ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरजीहात में वर्किंग क्लास और लेबर क्लास की फलाह बहबूद शामिल है और इस सिलसिले में हुकूमत कई एक इक़दामात भी कर रही है। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने भी शिरकत की, जबकि वर्किंग क्लास और लेबर क्लास कम्युनिटी की खिदमत की सताइश भी की गई। మహాత్ముడు ఇప్పుడు మన సీఎం, మన ఆరాధ దైవం, మన కలలన్నీ నిజం చేసే నాయకుడు, మనకు రోజు కళ్ళల్లో ఒత్తులేసుకొని మన కోసం ఆలోచన చేసే నాయకుడు. ఆయన వచ్చినాకనే ఇప్పుడు మా రాజేశ్వరన్న చెప్పిండు, మా రాంబాబాయ్ అన్న అయితే ఎప్పటికీ అడుగుతూనే ఉంటాడు, ఆ లీటర్లు పట్టుకొని తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన అప్పటి జమానా చూసిండు కదా, ఇంకా ఆయనకు అలవాటు పోలే. మన తెలంగాణలో మొత్తం మారిపోయింది కార్మికులదే. మన సీఎం KCR గారు ఒక్కొక్కటి రాష్ట్రం వచ్చినాక మీరు చూడండి, రైతులది ఎంత గోస ఉండే, రైతులను పట్టించుకునే నాదుడు లేడు. కరెంటు ఉండకపోవు, నీళ్లు ఉండకపోవు, పంట పండితే కొనే నాదుడు ఉండకపోవు. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చినాక రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు, రైతులకు పెట్టుబడి ఇస్తున్నాడు, రైతులకు ప్రమాదం ఏమైనా ఉంటే బీమా ఇస్తున్నాడు, సకాలంలో మందులు దొరుకుతున్నాయి, ఎరువులు, మళ్ళా పండిన పంట ప్రతి గింజను కొంటున్నాడు. కేంద్రం మోసం చేసినా కానీ వేల కోట్లు నష్టం వచ్చినా సరే నా రైతులు ఇబ్బంది పడద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు పండించిన పంట కొంటున్నారు. రైతులు సెటిల్ అయిపోయారు. तेलंगाना हुकूमत ने लेबर तबके के लिए कई एक बहबूदी स्कीमात का आगाज़ किया है ताकि उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मे डे के मौके पर वर्किंग क्लास कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की और अपने प्याम में कहा कि वर्किंग क्लास कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के बायस रियासत भर में कई रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में INTUC की जानिब से मे डे का अहतमाम किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन का परचम भी लहराया गया। यूथ कांग्रेस कायद महेश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि ट्रेड यूनियन से मलहक़ा यूनियनों के अरकान और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासत भर में मे डे तक़ारीब का मुख्तलिफ़ मक़ामात पर इनेकाद अमल में लाया गया। ఆలోచన విధానం లేనటువంటి ప్రధానమంత్రి, దూరదృష్టి బొత్తిగా లేనటువంటి ఒక ప్రధానమంత్రి, కార్మికుల పట్ల తనకంటూ ఒక అభిప్రాయం లేనటువంటి ప్రధానమంత్రి, కేవలం కార్పొరేట్ సెక్టర్, ఈ దేశంలో టాటా, బిర్లా, అంబానీలు బాగుపడితే దేశమంతా కూడా బాగుపడ్డట్టుగా భావించేటటువంటి ఒక ప్రధానమంత్రి మనకు ఉండడం అనేది దురదృష్టకరం. ఏ ప్రధానమంత్రి అయినా, ఏ అధ్యక్షుడైనా రాష్ట్ర దేశానికి కార్మికుల్ని వాళ్ళ యొక్క కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకునే విధంగా, వారి యొక్క కష్టసుఖాలు తెలుసుకునేటువంటి విధంగా ఉంటే
ఆ దేశం ముందుకు పోవడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం చూసాం, అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమం రెండు కళ్ళగా చూసినటువంటి పరిస్థితి. ఆనాటి ఈనాడు వరకు కూడా నెహ్రూ మొదలుకొని మన ప్రధానిగా పనిచేసినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ వరకు కూడా ఈ దేశం అన్ని విధాలుగా బాగుపడాలి, అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందాలి, దాంతోపాటు కార్మికులు కర్షకుల యొక్క సంక్షేమం అందులో పొందుపరిచి ఉండాలని తప్పించినటువంటి వ్యక్తులు. కానీ వాళ్ళ మోడీ దాన్ని భిన్నంగా మనం చూసాం. ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక ఉక్కు మనిషిగా ప్రధానిగా బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేయడంతో పాటు రాజభవన్ రద్దు, పెద్ద పెద్ద కోటల రద్దు, ఎన్నో ప్రైవేట్లో పనిచేసిన సంస్థల్ని ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకురావడానికి ఆవిడ చేసే కృషి మనందరూ తెలుసు. ఆనాడు టాటా साबिक रुकन पार्लिमान और कांग्रेस कायद मल्लू रवि ने कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी निज़ाम दक्कन के दौर में तामील की गई यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी एक तारीख़ी पस मंज़र रखती है। हर सियासी जमात को तालीमी इदारों से रुजू होने का भी हक़ है। वाज़ेह है कि पुलिस ने जग्गा रेड्डी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जाने से रोकने के लिए हिरासत में लिया था और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। అనుకుంటా ఒక క్రిస్టమస్ తప్ప తక్కిన పండగలన్నీ కూడా ఏ దేశానికి ఆ దేశంలోనే జరుపుకుంటారు. కానీ క్రిస్టమస్ను ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం జరుపుకుంటాయి. రెండోది మేడేను కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నీ జరుపుకుంటాయి. ఎందుకనంటే మేడే అనే దినాన్ని దేశంలో ఉన్న కార్మికులందరూ ఏకమయ్యి వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాటం చేసి సాధించుకున్నటువంటి హక్కులను రక్షించుకోవటానికి ప్రతి సంవత్సరం మే 1న మేడే దినం రోజు కలుసుకొని ఆ రకంగా సాలిడారిటీ ప్రపంచ కార్మికులంతా ఏకంగా ఉన్నాం, ఐక్యంగా ఉండి పోరాటం చేస్తేనే ఒకప్పుడు కార్మికులు ఇండస్ట్రీస్లో 12 గంటలు 18 గంటలు పనిచేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఈ మేడే అంతకుముందు కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి ఈ మేడే రోజు వాళ్ళు డిక్లరేషన్లో ఏ దేశంలోనైనా కార్మికులు రోజుకి సరాసరి యావరేజ్గా 8 గంటలు మాత్రమే పనిచేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది పెద్ద డిక్లరేషన్. దీంతో పాటు ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఎక్కడైనా పనిచేసేటటువంటి కార్మికులు యాక్సిడెంట్గా చనిపోతే ఆ యాజమాన్యమే వాళ్ళకి ఆ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला से सवाल किया है कि वो राहुल गांधी की उस्मानिया यूनिवर्सिटी विजिट से क्यों घबरा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए तलबा से बातचीत करना चाहते हैं, ताहम इसके लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। वाज़ेह है कि कांग्रेस कायदीन जग्गा रेड्डी, वी हनुमंतराव व दीगर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रुजू होते हुए राहुल गांधी के दौरे के लिए इजाज़त मांगी है, ताहम हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस सिलसिले में मदाखलत कर रही है। सीनियर पार्लियामेंट्रियन व साबिक़ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के मौके पर मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर महफिल ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया, जिसके बाद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की मज़ार वाक़े आकापुरा पहुँच कर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मिराज, कौसर मुहिउद्दीन, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, बुरहानुद्दीन ओवैसी, एडिटर रोज़नामा एतमाद के अलावा मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर दारुस्सलाम में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार व तनावुल ताम का भी अहतमाम किया गया।
मिलो आप लोग मिले ले तो रामी साहब अभी आगे इसके ऊपर खड़े रह कर खजिला रहे वैसे मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में नमाज ईद उल फितर 6:10 पर होगी, जबकि नमाज फ़जर की जमात 5:15 पर होगी। तौलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने मुसल्लियान से बपाबंदी वक्त शरीक होने की अपील की है। मस्जिद बिल्किस ऐसे कॉलोनी टोली चौकड़ी में आखिरी ताख़रातों में क़यामुल लैल का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों मुसल्लियान शरीक हो रहे हैं। इंतज़ामी कमेटी में बहैसियत सदर शेख समी असर जामी, सेक्रेटरी शेख मोहम्मद अनवर अली और मोहम्मद अब्दुल रशीद शामिल हैं, जो इंतज़ामात में हिस्सा ले रहे हैं। इस मस्जिद में इफ्तार और सहर का भी नज़म किया जा रहा है, जो आदिल बावज़ीर और उनके फ़र्जंद इंतज़ामात में हिस्सा ले रहे हैं। ज़िले नागर कर्नूल में वाक़ कल्लूकर्ती पावर डिपार्टमेंट में एई की हैसियत से काम करने वाले सुरेश को 1 लाख रुपये रिश्वत हासिल करते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सुरेश ने कॉन्ट्रैक्टर से सरकारी काम के लिए 2.5 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी और 1 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ సంబంధించి హైదరాబాద్ చెందిన ప్రభాకర్ అనే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్టర్ని వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు. దేనికోసం అంటే పోల్స్ వేయడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ శాంక్షన్ కావడం, లైన్ వేయడం, దాని గురించి. దానిలో జనవరిలో వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని ఎస్టిమేషన్ కోసం లోకల్ ఈ సురేష్ గారిని వచ్చి కలవడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళు ఈ కంప్లైంట్ చెప్పే దాని ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్క వెంచర్కి ఒక 100 kV DTR ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాత్రమే వేయాలని ఉందట. కానీ ఏఈ గారు కావాలని 2 100 kV DTR ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చేసి తనకు ఎక్కువ డబ్బు నష్టం కలగాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్టిమేషన్స్ డబల్ వేసారని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి అతను ఒక 2 సార్లు కలిస్తే ఈ 2 ప్లస్ ఇంకా వేరే 3 వెంచర్లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నాయట. ఈ 5 వెంచర్లకు ఒక్కొక్క వెంచర్కి 50,000 అంటే మొత్తం 2,50,000 ఇస్తేనే దాన్ని రివైజ్ చేసి మళ్ళీ 2 100 ప్లస్లో ఒక 100 ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం శాంక్షన్ చేసి పంపుతామని చెప్పి ఆ ప్రాసెస్ దానికోసం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ వచ్చి ఆ ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ చెందిన ప్రభాకర్ అనే వ్యక్తి వచ్చి మాకు ఏసీబీ ఆఫీస్ మహబూబ్నగర్లో కంప్లైంట్ చేస్తే అతను వెరిఫై చేసిన తర్వాత అతను డబ్బులు రెడీ చేసుకుని 1 లాక్ ఈరోజు వస్తే సాయంత్రం 4 o'clock ఆ ప్రాంతంలో వచ్చినప్పుడు తను బయటకు పోయాడు. మళ్ళీ 5 o'clock ఆ ప్రాంతంలో వచ్చి కలిస్తే కార్లో కూర్చొని పెట్టుకొని డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి ఆ 1 లాక్ దానిలో పెట్టుకొని చెప్పాడు. అయితే అతను కంప్లైంట్ దిగగానే తను కార్లో వెళ్ళిపోతే మేము ఆఫీస్ ముందే అడ్డగించి అతను ఆపి ఆ డబ్బులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. స్పెషల్ కోర్టు ఏసీబీలో హైదరాబాద్ నాంపల్లిలో రేపు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఎవరు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు లంచంగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే మాది 1064 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది. దానికి ఫోన్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఎంక్వైరీ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ सुजाना शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर वाक़ एक शॉप में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। सारक़ीन ने तकरीबन 8 लाख रुपये मालियती नखरवी जेवर का सरक़ा किया और राह फ़रार इख्तियार की। इत्तला मिलते ही KPHB पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाक़ शमशाबाद पर कस्टम अहदेदारों की जानिब से सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दोहा क़तर से आने वाले एक मुसाफिर के कब्ज़े से 1680 ग्राम सोना जुमला मालियती 89,74,000 रुपये ज़ब्त किए गए। कस्टम अहदेदारों ने मुसाफिर को फ़ौरी मुतल्लिक़ा पुलिस के हवाले किया। भोलकपुर में वाक़ एक प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने आतिशफ़रो अमले को मुतल्ला किया, जिसके बाद 3 फायर इंजन्स मुकाम हादसे पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस हादसे में हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाना बाकी है। इस आतिशज़दगी हादसे की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जबकि मुशीराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ब्त की कार्रवाई अंजाम दी। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम रियाज सऊदी अरब यूनिट की जानिब से रियाज में वाक़ नियाग्रा होटल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, सदर AIUS मोहम्मद इस्माइल हसन और जर्नलिस्ट KN वासिफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मोहम्मद रफ़ीक CEO मुमताज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अलावा मोहम्मद फ़ारूक रज़ा ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन के अलावा KN वासिफ व दीगर ने खिताब किया। दाई महफिल व इंचार्ज रियाज यूनिट IJFF बासित अबू मुआज़ ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और कार्रवाई चलाई। सीनियर सहाफ़ी और कालम नवीस KN वासिफ और मोहम्मद इस्माइल हसन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल नईम क़य्यूम, सैयद खालिद करीम जनरल सेक्रेटरी AIUS के अलावा मोहम्मद अतहर मोयुद्दीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद काशिफ अली व दीगर भी मौजूद थे। सबसे पहली बात बहुत बहुत मुबारक बासित भाई कि आज माशाल्लाह आप इफ्तार का इंतज़ाम किए थे, और बहुत बहुत मुबारक के काबिल है हमारे डॉक्टर आसिफ अली साहब, जो माशाल्लाह उनके कहने से यहाँ पे आज रियाद में आप लोग ये प्रोग्राम जो कि इफ्तार का प्रोग्राम करे हैं। जब मैं इंडिया में था 3-4 महीने पहले, तो आसिफ भाई से मेरी काफ़ी 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, और जो PhD के सिलसिले में जो एक हैदराबाद में जिस तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए हो रहे थे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके चाहने वाले कितने हैं, और वहाँ हैदराबाद में नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में भी, और माशाल्लाह। और मैं उनको ये कहा भी था कि हम उनको यहाँ पे रियाद में एक बार बुलाएंगे और उनको फेलिसिटेट करेंगे, क्योंकि उनका NRIs के लिए रूबी चैनल के जानिब से बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें हमारे बासित भाई और नईम भाई लोग काफ़ी अच्छा माशाल्लाह रूबी के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि आज हमारे सैफुद्दीन भाई ने कहा है कि आज का प्रोग्राम ही उसी सिलसिले से है कि IJFF के ताल्लुक़ से। और सऊदी अरेबिया में जैसा इंडिया के हालात तो हमको पता है, लेकिन हम जो NRIs यहाँ सऊदी अरेबिया में रहते हैं और जिसके घर वाले वहाँ पे इंडिया में है और जो ज़्यादा कंसर्न है, तो यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो सहाफ़त कर रहे हैं, यूट्यूब के चैनल से कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया के से कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर रहे हैं, इनका बड़ा रोल है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि हर आदमी बात यही चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बासित अबू मुआज़ भाई, क्योंकि आप यहाँ पे IJFF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कि अपने इस चैनल को बड़ी मुस्तैदी के साथ वो चला रहे हैं एक अरसे से, और बड़ी पाबंदी के साथ वो चैनल जो है यूट्यूब पर आता है, तो इसके लिए भी उनको मुबारकबाद। और तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी तहनीत की जाए, तो बहरहाल मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ IFJ का कि उन्होंने मुझे जो है तहनीत
پیش کی، اس کی میرے خدمات کا اعتراف میں اس اہمیت پیش کی، اور باسط ابو ماس صاحب جو اس کے ریاض میں ذمہ دار ہیں ایسوسیشن کے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب کا اہتمام کیا. یہ مختصر صحیح لیکن بہت ہی اہم تقریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ کافی میرے احباب پورے یہاں بیٹھے ہیں، اور رفیق صاحب اور ڈاکٹر اشرف صاحب وغیرہ. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ISGF کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو یہ آرگنائزیشن کو تمام جرنلسٹوں کو انہوں نے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم مہیا کیا، اور دنیا کے جن جن ممالک میں ہندوستانی آباد ہیں وہاں سب اس کی ایک برانچ ہے، اور ایک بہت ہی اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی پذیرائی ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی شہرت ہو دنیا میں، اور جرنلسٹوں کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے مہیا کیا ہے. اس کے لیے میں آصف صاحب کا اور ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ اور ترقی کرے گا. باسط صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جرنلزم کے بارے میں کچھ کہوں. جرنلزم کے بارے میں اگر ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کرنا چاہیں تو اسپیسیفکلی بھی اگر بولنا چاہیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ہندوستان کے ایسے حالات ہیں کہ موجودہ حالات میں جرنلزم اور جرنلسٹ کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جہاں جو حالات بگڑ رہے ہیں اور جو حالات ہندوستان کے حالات جس طرف رخ مڑ رہا ہے حالات کا، ان حالات میں بدقسمتی سے ہندوستان کی میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور یہ ہم جرنلزم کی فریٹرنٹی کے لیے بہت افسوس کی بات ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ کچھ صحافی ہیں جو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سچائی کا ساتھ دینے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. کئی ایسے صحافی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چینلز میں کام کرتے ہوئے جب ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوئے تو یا تو ان کی ملازمت چلی گئی یا انہوں نے خود چھوڑ دیا اور پھر اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر کے کام کر رہے ہیں. ویسے صحافیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، اور بس یہی کہوں گا کہ ہندوستان میں موجودہ حالات میں صحافت کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور اس لیے ایمانداری کے ساتھ صحافتی فرائض انجام دینے کی بہت ضرورت ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. تلنگانہ حکومت ورکنگ کلاس کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد، مے ڈے تقریب سے ریاستی وزیر لیبر کا خطاب. کانگریس رکن اسمبلی جگا ریڈی کو حراست میں لیے جانے کی مذمت، وزیر اعلیٰ KCR راہل گاندھی کو عثمانیہ یونیورسٹی کے دورے سے روک رہے ہیں، کانگریس قائدین نے لگایا الزام. تلنگانہ کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں بھی مے ڈے تقریب کا انعقاد، INTUC قائدین اور کارکنوں کی شرکت. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.